हालांकि मैं भी तारा देख तारा आसमान पे लटका है बेचारा, ये ज़मीं गर्दिश में थी, घूम 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 के मारा यारा, हम भी कहीं लटके यहीं, रोको ज़मीं, दो ही दिन का है तमाशा, बजा मेरी बजा यार बजा, जी भर के जी मर ले, आज है आज है आज है आज है कल कुछ नहीं, का किल किल दा 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 दिल दिल, का किल किल दा 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 किल दिल. Wow. I mean, after this, I have to get back to my state questions. Shamir, I must pronounce that properly. Shamir, how important is a platform for an artist to get their musical career going? Since you've launched so many artists, you might want to explain that. I think it's very important and a fabulous platform, because when Sanjay first told me about this, I was very happy that someone somewhere in this world has thought about this, because it just took me back to my school and college days, and I realized how bereft we were, that we didn't have this kind of good fortune to have these kind of platforms. We would only sing in front of, say, 500 people in our college or school and whatever. But this is something that is on your handset, and handset today is a more accessible tool than a television or radio and things. So if any person anywhere in this world, I think it's a blessing, it's an ashirvad, that anywhere, anyone, at any time of the day, night, any mood, wherever, you're in the bathroom, you're in your bedroom, you're with your parents, you're with your girlfriend, you're with your school, college friends, you can just press the app, get the song, whichever is your favorite in whichever language, because as the IP custodian of Mausiki, we've ensured that we have got more than 50,000 English Western songs, we've got more than 25,000 Hindi national songs, and of course we've got a lot of regional songs, because India is such a diversified country that we've got Bengali, Marathi, Gujarati, Punjabi, all the 4 South languages, and so on and so forth. So we've covered pretty much the entire spectrum that could be, and this is only the tip of the iceberg. As we move along, we'll be adding more and more repertoire. It's also across various genres. So for example, when Universal Music Publishing has come on board to lend us their catalog, then we've got the most fabulous ghazals from the era of Jagjit Uncle, Talat Saab, Pankaj Das, and entire devotional thing of Anup Jalota, Hariom Sharan. We've got the best of the 70s and 80s, 70s, which was considered to be the biggest musical era of Bollywood at some point in time. We've got that entire thing from the whole Ramesh Sippy and NN Sippy camp and the Behel camp, you know, so we've got like, so everyone will get a song which he can choose from. So it's not that, you know, I want to sing this song, but this song is not available, you know, so you can choose a song to your liking. And the entire Music Today catalog. Yeah, absolutely. Good for the plug. Thank you. Sanjay, this one's for you. So can you sing? I mean, what made you think you could get into the music business? See, the fundamental reason for me coming, you know, you must have heard, necessity is the mother of invention, right? Totally. I could not sing to save my life. I could not use technology to fix my problem. I could not take myself out of the bathroom in front of the world. So the easiest thing I could have done is, but if not me, at least make that platform available. My education is information technology. My experience is entrepreneurship. My passion is music. I could not have found a better way to combine all of that and my frustration in the form of a solution, which is music. As simple as that. Great. We would now like to demonstrate the app. Maybe Sonu and Sureshji can sort of help us demonstrate how we can use the app to sing our hearts out. So Sanjay, do you want to? By both of them. Bhakti.
there you are. So would you just come here and help us do this? बातें, कुछ 5 चीज़ें आप ऐसी बता सकती हैं कि ये करो तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी और आप थोड़ा ये करोगे, क्योंकि अगर इस ऐप से आपकी ऑटो करेक्शन हो जाएगी तो जब आप रियल लाइफ में कहीं भी बैठ के गाओगे तो आप ये ऐप बेसिकली आपको संगीत सिखाने के लिए नहीं है, ये संगीत एंजॉय करने के लिए है। पहली बात तो ये ऐप है। रहा आपका सवाल कि अपने काम पे कैसे, अपने क्राफ्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, 2-4 चीज़ें हैं जो हैं, जैसे लोग बोलते हैं रियाज़ करना तो ठीक है, बट सही रियाज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग सही टीचर्स पा जाते हैं तो वो टीचर्स अच्छा सिखा देते हैं। सुरेश जी जैसे लोग हैं जो बहुत सारे सिंगर्स को इनके गुरुजी ने इनको तैयार किया, अब ये औरों को तैयार कर रहे हैं। सही रियाज़ करना ज़रूरी है। फिर मुझ जैसे आदमी को ठंडा सूट नहीं करता, तो मैं ठंडा अवॉइड करता हूँ। और जब कभी कॉन्सर्ट्स करते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, कान में अगर हवा जाती है तो फिर नेक्स्ट डे खांसी जुकाम हो जाता है। परसों मेरा कॉन्सर्ट था, इसलिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि बहुत ठंड थी, अहमदाबाद में ओले पड़े थे और मैं वहाँ पे गा रहा था, तो वो चीज़ सूट नहीं करती। बट सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से चीज़ है वो है सबको सुनना, बहुत सारे लोगों को सुनना, एक को नहीं कि बस मेरे को तो आई जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर सिंगर सो मैं इनको सुनता रहूँगा और किसी को नहीं सुनना। ऐसा करते करते लोग क्या करते हैं कि एक को अपना आइडल बना लेते हैं, बाकियों के विरुद्ध हो जाते हैं वो, कि मतलब आई डोंट लाइक एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट दिस गाय, दिस गर्ल, व्हाटएवर। तो ये रॉन्ग एटीट्यूड है। सबको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया होता है। जिसको भी भगवान ने कुछ किस्मत में कुछ रखा हुआ है जो फेमस है, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। तो ये एटीट्यूड के साथ में म्यूजिक को देखना पड़ता है। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज पीपल, यू कैन नॉट कंडेम पीपल, यू कांट कंपेयर पीपल। एंड सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है दिमाग और दिल साफ रखना। अब आपके म्यूज़िक में आपका एटीट्यूड आता है। अगर आप बहुत नेगेटिव हैं तो आपकी म्यूज़िक में नेगेटिविटी आती है। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, हम आपस में पर्सनली जब बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसे सिंगर्स हैं जो बिल्कुल इतना अच्छा गाने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? बिकॉज दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन नेगेटिविटी। सो दिमाग अगर ठीक रखेंगे तो म्यूज़िक सुर भी सच्चे निकलते हैं और यू मेक मोर फ्रेंड्स and despite a stiff competition you always retain your spot in the limelight. This is what I feel. Thank you.
one more question. Anyone else? Yeah. Yeah. One more question. What about your revenue model? I mean, how do you make profits out of the whole business? Sanjay, you want to answer that? It's a very simple, just like you download songs from iTunes. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you, Anybody Poonam. else? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. आलोक, कोई क्वेश्चन है आपके पास? यहाँ पे माइक देना प्लीज. सॉरी. होगी तो किस तरीके से चयन करेंगे, क्योंकि ऑटो ट्यून तो सभी के गाने होंगे, तो सभी अच्छा गा रहे होंगे, तो फिर उस समय चयन के क्या मानक होंगे, किस तरीके से आप प्रतियोगिता में लोगों को? यकीन मानिए ऑटो ट्यून के बाद में भी गड़बड़ हो जाती है काफी लोगों से. सो उसमें भी मालूम पड़ जाता है आई थिंक कि कौन ज़्यादा अच्छा उसका फ़ायदा उठा पा रहा है. सो मालूम पड़ जाएगा. इट्स नॉट, यू कैन नॉट, even despite the help, what auto tune cannot make you a perfect singer. Actually, it can help you in certain ways, but if you're a better singer, the output is better. Am I right? It can only reduce the variance of basuranes. It can only reduce the variance of the basuranes to a particular extent. It can't just make you spick and span, you know. काफी अनोखा कॉन्सेप्ट है, तो ये तो टीवी पे आना चाहिए, तो क्या ये टीवी पे भी आएगा या सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित रह जाएगा? As the popularity grows, obviously there'll be lots of associations, TV, radio and all that stuff, and this can become a very capable and potent audition platform for all the reality shows which are happening, and it can become a platform by itself, which could, you know, be one more platform other than the television things. Absolutely. हाय सोनू सर, यहाँ पे आपके लेफ्ट में मेरा सवाल यही है आपसे भी और सुदेश जी से भी. आईकेएल का मेन मोटिव क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या मेन मोटिव है इनका? बेसिक मैंने जैसे पहले कहा, इट्स मेकिंग म्यूजिक फन, म्यूजिक हाउस होल्ड, संगीत को जैसे कहते हैं ना सुविधा. इट्स मोर लाइक अ फैसिलिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग singers, aspirant singers, amateur singers, bathroom singers. It's a facility that we are providing them to sound better than they've ever heard themselves in. It's almost like making a small छोटा सा जो स्टूडियो की फैसिलिटी उपलब्ध होती है सिंगर्स को अपने सुर को लाने के लिए, वो चीज़ को हम घर घर तक उनके स्मार्टफोन्स में ला पाएंगे. यही हमारी मंशा है. मेरा प्रश्न मैं आपके सामने हूँ, सुरेश जी से है. सुरेश जी, ये जो पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड है, उसमें आपके नाम के साथ लिखा हुआ है मेंटर. तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से मेंटर तो राह दिखाने वाले को कहते हैं, लेकिन ये एक प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे लोगों के सुर जो बेसुरे हो गए हैं या बेसुरे होने की तरफ हैं, उन्हें सुधार कर कंपटीशन में लाने की बात है. तो वहाँ किस तरह की राह दिखाई जाएगी? अगर जजमेंट की बात है, मतलब आप निर्णय करते हैं, तो आप तो कुछ बेसुरों में जो सुर वाले हैं उनको करीने से किनारे करके चुन लेंगे. एक्चुअली ये इनके मेंटोर है. सुरेश जी, सोनू जी, आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पॉलिटिकली करेक्ट भी है. खैर, मेरा एक सवाल इस पूरी योजना के जो परिकल्पनाकार हैं उनसे है. जब आप भारत की बात करते हैं तो विभिन्न भाषाओं की बात करते हैं और हिंदी की भी बात करते हैं, लेकिन जो पूरी प्रतियोगिता का प्रारूप और प्रस्तुतिकरण है वो पूरी तरह से अंग्रेजी में है, यहाँ तक कि प्रेस रिलीज भी अंग्रेजी में है. तो आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय भाषाओं के गायकों और कलाकारों को जब आगे लाने की बात होती है तो ये परिकल्पना जो है उसमें हिंदी का कुछ और हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए था? नहीं, आपने शायद अपनी सुविधा अनुसार जो वक्तव्य हमने हिंदी में दिया वो आपने अपनी सुविधा अनुसार सुनने से मना कर दिया अपने आप को. हमने हिंदी में भी बात की थी और हमने अंग्रेजी में बात की है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम इंग्लिश अच्छी जानते हैं और हमने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी है. भाषा के बारे में हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं. और सुरेश जी तो बेचारे इंग्लिश बोलते ही नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने हिंदी का आपके सामने. गाने बजाने में तो दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं. ये शायद इशारा मेरी तरफ है. नहीं, सभी सबकी तरफ ही है. आज तक पे आप हमारा प्रोग्राम देखिए, सुरीली बात सारा हिंदी में है. हाँ, वो है ना सुरीली बात. माला सिकरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वो एक्चुअली इसके लिए सही जगह तो नहीं है, फिर भी बता दो. संजय रंजन जी यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे क्या बोलते हैं सेनाध्यक्ष
अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, पति के भी अध्यक्ष हैं ये। और एक कानून बन चुका है जिसके वजह से परफॉर्मर्स, सिंगर्स को रॉयल्टी यूजर्स से मिलती है। तो ये आपको और बाद में बता देंगे डिटेल में। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में हम ज़्यादा बात करें। सोनू जी आपसे और सुरेश जी आपसे पूछना चाहूंगा, इफ यू कैन हियर मी सर। यस। यू नो जो आपने ऐप लॉन्च किया है दैट इज माइंड ब्लोइंग, उसमें सवाल ही नहीं उठता, बहुत अच्छा है। जो भी गाना चाहते हैं या जिन्हें भी जरा सा भी लगता है कि भाई गुनगुना लिया जाए तो सबसे बेहतर ये ऐप होगा। लेकिन जिस वक्त आपने ऐप लॉन्च किया है उसी दौरान इंटरनेट को लेके कि कौन क्या देखेगा, कौन क्या सुनेगा, या किसके मोबाइल पे कौन सा व्हाट्सअप यू नो ऐप होना चाहिए, उसको लेके बड़ी बहस चल रही है पिछले 3 दिन से। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या प्लानिंग रहेगी आपकी कि आपका जो ऐप है वो भी लोगों तक पहुंचे? यू नो इट्स देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यू नो कि यूजर को क्या देखना है, क्या सुनना है। न्यूट्रलिटी ऑफ द इंटरनेट। यस, मैं हालांकि मैं इतना ज़्यादा अवगत नहीं हूँ इस बारे में। मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़ देखी है इस बारे में, मुझे लोगों ने सवालात किए थे और मैं देख रहा हूँ कि मुहिम चल रही है फ्री इंटरनेट ना, ऐसा कुछ चल रहा है। वेरी ट्रू सर, है ना, ऐसा वेरी कुछ ट्रू, क्या है? वेरी ट्रू, इट्स अ फ्री इंटरनेट। सेव इंटरनेट, सेव इंटरनेट, Save the वो भी आ रहा है। आई फील सब चीज़ के अपने अपने अगर इंटेंट ये नहीं होता कि टेलीकॉम कंपनीज को बचाना है तो ये इतना बुरा नहीं है। बट मैंने ये भी देखा है और मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम फ्रीडम का उसके साइड में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज़ादी मिले सब, हर चीज़ में सब कुछ। लेकिन ये भी देखा है मैंने कि ट्विटर पे और फेसबुक पे कोई किसी को भी कुछ भी बोल देता है, माँ बहन की गाली, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वो। इतना बड़ा आदमी, मैंने तो मतलब बड़े बड़े लोग, नाम नहीं लूँगा मैं, इतने बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, महा पीपल ऑफ दिस सेंचुरी, उनको माँ बहन की गाली खाते हुए देखा है। तो अगर ये इंटेंट होता कि भाई थोड़ा सा लोग की ज़बान पे लगाम किया जाए, क्योंकि हम तो ये बोल सकते हैं यू नो इट्स माय राइट, बट यू आर एक्चुअली, जिस तरह हम बलात्कार के अगेंस्ट हैं वैसे ही हम किसी के मान सम्मान का बलात्कार के भी अगेंस्ट होना चाहिए हमको। कोई किसी को भी कुछ कह दे ऐसे तो ऐसे कैसे चलता है यार, है ना? कोई कुछ भी बोल दे किसी को, तुम मतलब तुम्हारे को राइट दे रखी है और तुम इंटरनेट पे लिख रहे हो तेरी माँ का ये, तेरी बाप का वो, तेरी बहन का ये, तो ये भी बलात्कार नहीं है क्या? हाउ कैन यू, एक ऐसे एक सज्जन है जो एक टेलीविजन पे शो करते हैं, इंटरनेट पे शो करते हैं जिसमें वो समीक्षा करते हैं, क्रिटिक हैं वो कुछ भी गाली बोली देते हैं यार, तो ये कैसी फ्रीडम है? अगर ये इंटेंट होता तो मैं उसके पक्ष में होता, पर यहाँ इंटेंट मेरे ख्याल से ये है कि वाइबर को कटवाओ क्योंकि फोन कॉल्स, आई थिंक एम आई राइट, स्काइप को बंद करवाओ, ये रॉन्ग इंटरनेट है। मतलब दिस इज द इंटेंट इज रॉन्ग कि अगर हमको फ्रीडम मिल रही है कि मैं चाइना में घूम रहा हूँ और मुझे मेरे बेटे से वाइबर में बात करनी, तो वाई कांट आई टॉक टू माय सन ऑन वाइबर, और उसमें फेस टाइम हो पा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। सो ये इंटेंट रॉन्ग है। किसी के जो महारथी हैं टेलीकॉम के, उनको बचाने के, उनके वजह से उनके प्रेशर में आके स्काइप को रोक देना या वाइबर को रोक देना, ये रॉन्ग है। हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई किसी को भी माँ बहन की गाली दे दे, ये भी बलात्कार है। ओके, लास्ट मेरा सोनू सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपने बिना नाम लिए कहा कि कोई सज्जन है और फिल्म की समीक्षा करते हैं और गाली गलौज के साथ करते हैं, जो यकीनन गलत है। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के खिलाफ, जिनके बारे में इस तरह के आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खड़े होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली नेगेटिविटी को जितना आदमी फ्यूल करेगा नेगेटिविटी बढ़ती है। मैं इसी पक्ष में हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कल आपके पिता के बारे में या मेरे पिता के बारे में या किसी की बीवी के बारे में, किसी के पति के बारे में, किसी के बच्चे के बारे में गाली गलौज चल रही हो, कितना बुरा लगता है। ये कहाँ की फ्रीडम है? और अगर ऐसा अमेरिका में होता होगा तो क्या जरूरी है कि हम वो करें जो अमेरिका में करते आए हैं? बड़ा आसान है। अब मैं ये कह रहा हूँ तो शायद इस पे भी कुछ आ जाएगा कि अरे इसको बड़ा लग रहा है, बट आई फील अपने पे जरा कभी झांक के देखो। तुम्हारे बाप को गाली पड़ रही हो, तुम्हारी माँ को गाली पड़ रही हो, तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ गंदी गंदी बात बोली जा रही हो, तुम्हारी बहन के बारे में, उसके स्कर्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसके अंदरूनी ऑर्गन्स के बारे में बात की जा रही हो, कैसा लगेगा? ये कहाँ की फ्रीडम है? सो आई फील थोड़ा सा कंट्रोल हो सके तो ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप वाइबर और स्काइप को और व्हाट्सएप को महंगा कर दो या बैन कर दो। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ।
देखो जब तक मैं हैविंग सेड दैट मैं इस भी मेरे ओपिनियन में हूँ कि वी शुड सर्टिफाई फिल्म्स songs. We cannot stop people from creating whatever. Like there is a very hidden truth about the world that every man has seen a porn film. Every girl has seen a porn film. सबको WhatsApp में मिलते रहते होंगे. कोई बात करता है इस बारे में? कोई बात नहीं करेगा. तो it's an industry. People enjoy. So I can't stop people from watching porn. Who am I to dictate तुम क्या देखो, क्या नहीं सुनो? जब तक मैं किसी को आहत नहीं पहुंचा रहा, ये बैठे हैं मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, ये रॉन्ग है. मैं कौन होता हूँ इनको रोकने वाला? ये क्या देखना चाहते हैं, क्या किस भाषा में बात करना चाहते हैं, इनको क्या ओपिनियन है इनके बारे में. बट एज लॉन्ग एज वी आर नॉट हर्टिंग पीपल. सो सॉन्ग्स में भी ऐसा ही है. अब किसी को गाने में डालना है, गाने में दम है तो बंद करवा लो. मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गाने में तो वही बोला गया है. जब उनको शर्म में आई, आपको सुनने में शर्म नहीं आई, तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी शर्म में आनी चाहिए. मैं तो जोर से बोलूँगा गाने में दम है तो बंद करवा लो, क्योंकि मैंने तो सुना है, मेरा बच्चा गाता है इस गाने को. अब इसको कैसे रोकेंगे आप? अगर जब उनकी हिम्मत हो सकती है इस गाने को पब्लिक करने की, फिल्म में डालने की, और मेरा पूरा कायस्थ खानदान मौजूद था दिल्ली में, मुझे अभी तक याद है, और हमारे सारे वो कंजर्वेटिव फैमिली पर्दे वाले ऐसे वाले लोग हैं, और गाना बज रहा है तो बंद कर वालों बज रहा है. ठीक है, वी कांट स्टॉप देम. इट इज अ चॉइस टू नॉट लिसन टू इट. बट इफ समबडी इज डूइंग दैट, वी हैव नो राइट भागने के. वो किसी को सुनना है सुनने दो यार. I can't stop them. I should not have the right to stop anybody from listening or seeing anything, as long as he's not hurting my sentiments. That's it. जी मैंने कहा ना, ये भी इट्स अ पर्सनल ओपिनियन. जिसको जो करना है वो करे. इतनी फ्रीडम मैं चाहता हूं कि हमारे देश में हो कि जिसको जो निकालना हो, जो करना हो करे, और जिसको जो नहीं सुना वो ना सुने. एज सिंपल एज दैट. हेलो सर, रोशन. इसके अलावा ये जो हमारे मेकर्स हैं या जो लिखते हैं और उसको कंपोज करके लोगों के सामने लाते हैं, ये उन्होंने रोकना चाहिए ना. और उनको रोकने के लिए आप जैसा बड़ा माध्यम तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता. आप तो नेक्स्ट डे क्या उसी रात से लोगों की नींद खराब कर देते हैं अगर कुछ लिखे आ जाता है तो ये आपका और बनाने वालों का झगड़ा है. हम तो पोपट लोग हैं बीच में, जैसा सिखाओगे हम गा देंगे. अच्छा हम नहीं गाएंगे माँ बहन की गाली, कोई तो गाएगा ना, उसको अपना सिक्का भी तो जमाना होता है. पकड़िए ना, पीटिए ना उनको. वो आपके मतलब फिजिकली पीटना नहीं होता है. आपकी जो आप जेब में लगाते हैं ना, इतनी सी कलम है वो बहुत कुछ कर सकती है. तो ये आपका भी तो फर्ज है. अगर हमारा कल्चर बदल रहा है, हम अगर नीचे का छोड़ के सर पे बांध रहे हैं, तो आप ही ने तो रोकना होगा उसको. सोनू जी, मैं आपके सामने. सर रोशन सामने. सर टेक्नोलॉजी और म्यूजिक को आप किस प्रकार से देखते हैं? सभी टेक्नोलॉजी और म्यूजिक आपस में, टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ को हेल्प करती है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो. टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो हम म्यूजिक सुनते हैं वो ज़्यादा साफ है, ज़्यादा क्लीन है. जब हम पुराने गाने सुनते हैं 70s के, 60s के, 50s के, तो उसमें जो डिस्टर्बेंसेस आते थे, नॉन स्टीरियोफोनिक साउंड होता था, 70s में तो आ गया था वो. अब तो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया साउंड. जैसे IKL में हम लोग ये जो ऐप बना रहे हैं, ये हम तभी बना पाए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम थोड़ी इसको कभी भी जीवंत कर पाते इस ड्रीम को, कि आप कुछ थोड़ा नज़दीक गा रहे हैं सुर के और आप सुर में साउंड कर रहे हैं. सोचिए कितना फन होगा कि मतलब आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, वो गा रहा है या गा रही है और सुर में आ रही है वो चीज़. सो इनको मैंने बोला था कैसे करोगे, जब उन्होंने मुझे पहली बार आइडिया बताया, तो पर उन्होंने कर दिया है और उम्मीद है कि लोगों तक ये बात पहुँचेगी, खूब एंजॉय करेंगे इसे. सोनू जी, एक टीवी कार्यक्रम में एक कलाकार हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लता दीदी की काफ़ी मिमिक्री करती हैं.
तो आपका स्टैंड क्या है, आपका विचार क्या है कि कितना खराब है? नहीं, लता जी मेरे ख्याल से खुद ही बहुत ओपन माइंडेड महिला हैं। वो बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं है इस मामले में। वो खुद बहुत अच्छी नकल उतारती हैं, और जब तक नेगेटिव कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे हमारे किसी ये लोग हमारे गुरुजनों से भी ऊपर है, क्योंकि हमारे फादर जब पैदा हुए थे तब लता जी उस समय भी वो सुपरस्टार थी, और उस समय भी वो एक आइडल थी सबकी। तो ऑब्वियसली अगर नकल उतारते हैं तो नकल तक ही रहे बात तो ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने देखा हुआ एक्ट, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं था लता जी के बारे में। मैं खुद बड़ा प्रोटेक्टिव हूँ हमारे सीनियर्स के बारे में। मैं अपने जो मुझसे बड़े हैं, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देम, एंड एनीथिंग नेगेटिव आई वुड नॉट अप्रिशिएट, बट आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग नेगेटिव। शी डिड नॉट पुट लता जी इन बैड लाइट. If she had done it, then I would definitely be against her, but I don't think she did, because कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे कि लता जी की गरिमा को नीचे ला रही हैं। लता जी खुद भी बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं, हम जानते हैं, मनीष भैया बैठे हुए। She is a very good mimic and a very dignified human being. Anyone else? म्यूज़िक की एक बहुत ही बढ़िया ऐप्स डेवलप किया हुआ है। हम IKL नाम से उसको लोगों के सामने ला रहे हैं, और इसके जन्मदाता हैं हमारे छोटे भाई संजय चित्रे, जिसमें सोनू निगम जी, मैं, समीर टंडन जी और माला सेकरी, हम लोग पैनल पे हैं। बहुत अच्छा ऐप्स है ये, कराओके बेस्ड है, जिसके ऊपर आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको जो पसंद गाना है वो डाउनलोड करके, और खुद को उसमें आप पिक्चराइज भी कर सकते हैं, और आप इसको भेज सकते हैं लोगों तक। और आपको जो शौक है गाने बजाने का, मुझे लगता है कि 100 में से 5-7% लोग ही होंगे जिनको गाना बजाना पसंद नहीं होगा, वरना नेचुरल प्रोसेस में है इंसान के गाना बजाना। तो ये बहुत बड़ा ये बन गया है ये ऐप्स, जो दुनिया भर के लोगों को इसका मज़ा, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड करना गाने के साथ। और मेरे ख्याल से पुराने नए सभी गाने उसमें हैं, जिसके साथ आप गा सकते हैं। जैसे कराओके के जो सिस्टम आप घर में लगाते हैं, गाना उसमें लिखा हुआ आएगा, रिकॉर्ड ट्रैक आएगा, जिसके साथ आप गा सकते हो, अपने आप को शूट भी कर सकते हो उसमें। कहीं जाने की बजाय घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके मोबाइल के ज़रिए आप अगर बाथरूम सिंगर हैं या घर में बैठे हुए हैं, दोस्तों में बैठे हुए हैं, कहीं घूम रहे हो, खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उसके लिए किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, जैसे रिकॉर्डर है या और कुछ है, कागज़ है जिस पे लिखा होता है गाना, इन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग फिर जैसे IPL होता है, जैसे स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे, या गांव खेड़े से लेके समझ लीजिए शहरों तक अपने गाने को पहुंचा सकते हैं।
तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से पहली बार दुनिया के सामने आ रही है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि संजय ने इतना ये खूबसूरत ऐप्स बनाया जिसमें हम लोग भी इन्वॉल्व है, मैं, सोनू, तो जाहिर है लोगों को बहुत पसंद आएगा। सर क्या आपने भी ये ऐप यूज़ किया है? कितना आसान है ये? मैंने किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ेदार है वो। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको छूकर तेरे मन को मैंने गाया, लिरिक्स भी आ रहे थे और ट्रैक भी आ रहा था, और बड़ा और उसमें अपने आप को प्रेजेंट करने का जो मज़ा आता है लोगों को कि मैं भी टीवी पे दिख रहा हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ये मेरी पूरी मुझे उम्मीद है। सर ये कितनी लैंग्वेज में अपन यूज कर सकते हैं? दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में आएगा। अभी तक तो हम समझ लीजिए हिंदी, मराठी या इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें होगा, और इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश गाने भी होंगे, अमेरिका में भी होगा, इंग्लैंड में भी होगा, जहाँ जहाँ जो लैंग्वेजेस हैं, साउथ में होगा, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, तो सारी लैंग्वेज में होगा, यूनिवर्सल है ये। और कंपटीशन भी होगा, इसमें हम लोग जज करेंगे कौन अच्छा गाया है। तो क्या अगर कंपटीशन की बात करें तो इसके अंदर लाइक 4 डिफरेंट सेशन है जहाँ पर स्कूल बच्चे, कॉलेज बच्चे जब कर रहे हैं, ये किस लेवल पे कंपटीशन को देखा जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी तो कि जैसे लोगों को मालूम, इसकी मालूमात हो जाएगी तो इसकी लेवल तो बहुत बढ़ने वाली है, इसका इंतज़ार करने वाले लोग, जैसे IPL का इंतज़ार करते हो आप, इसका भी करने वाले हैं। इसको थोड़ा अभी बच्चा है, इसको थोड़ा सा क्रॉल करने देना चाहिए, थोड़ा चलने देना चाहिए, फिर दौड़ेगा अपने आप। क्या है एक्चुअली, यू नो द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑल दीज रियलिटी शोज एंड टैलेंट हंट एंड ऑल दैट, इतना डिफिकल्ट होता है किसी गरीब बच्चे को जो टैलेंटेड है, जो आसाम से, केरला से, यहाँ से वहाँ से ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं, ऑडिशंस में 10-10 घंटे तक बिना खाए पिए सब खड़े रहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आज मोबाइल फ़ोन 2-3 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, सबके हाथ में आ गया है, छोटे छोटे गाँव में बैंडविड्थ डेटा प्लान्स अवेलेबल है, सो इट्स वेरी ईजी टू टेक द टेक्नोलॉजी एंड द अपॉर्चुनिटी टू देम। उनके हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है और उस अपॉर्चुनिटी को उस मोबाइल फ़ोन पर डाल दिया जिसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो स्टूडियोज़ में होता है जहाँ हज़ारों रुपये खर्चा करके सेम क्वालिटी का आउटपुट आ रहा है, उसको अगर उनके हाथों में डाल दिया तो कितनी अच्छी बात है। और उनका हमें और भी ज़्यादा टैलेंट मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आज अगर उनको 5,000 लोगों को जगह जगह भाग के 10 जगह जाके 5,000 लोग मिल रहे हैं, इस ऐप के थ्रू उनको 5 करोड़ मिल सकते हैं। जैसा मैंने बताया है कि कॉलेज की करीब 2 करोड़ पॉपुलेशन है, स्कूल्स में करीब 12 करोड़ लड़के हैं, सब तो आ नहीं सकते, कोई बीमार हो और चांस नहीं मिल रहा। ये एक ऐसा तरीका है जहां आप अपने घर पे बैठ के आराम से लीगली कैरियोकी ट्रैक्स को प्रॉपरली गा के, अगर आपको बाय द वे ऑटो ट्यून है इसलिए या फिर पिच करेक्शन है इसलिए उसको यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अगर पिच करेक्शन आपको यूज़ नहीं करना है तो आप बिना पिच करेक्शन के भी गाना गा सकते हैं। इसलिए हमने 2 वर्जन बनाए हैं, एक जिसके अंदर पिच करेक्शन अलाउड है, एक के अंदर नहीं है। तो जैसी जिसकी मर्जी है वैसे वो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कॉम्पिटिशन के लिए या इसके लिए है, ये ऑल्सो मस्ती के लिए भी गाया जा सकता है, अपने खुद के लिए, दोस्तों में। इसको आसानी से फैमिली फंक्शंस में या फिर ऐसे यूज़ किया जा सकता है। कैसे पहुँचेगा जो लोग संगीत गाएंगे, आपका किस तरह से? ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आप जैसे व्हाट्सएप पे लोगों को वीडियोस और ये सब भेजते हैं, वैसे गाना गाने के बाद आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन सब पे शेयर कर सकते हो ये। तो जब ये आएगा तो जैसा यूट्यूब पे आता है वीडियो, वैसे अपने music.com पे जब जाएंगे या फिर ऐप पे जब जाएंगे तो सारे लोगों की वीडियोस उसके ऊपर आएंगे। फिर आप उसको आसानी से सर्च कर सकते हो, नाम लेके, जगह, जियो लोकेशन, जैसे आपको, आप बम्बई में है और आपको 50 मील के अंदर, 20 मील के अंदर कौन कौन है जो म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, ये सब बहुत आसानी से ढूंढना आ सकता है। आप गाना, आपको ये भी देखना है कि छूकर मेरे मन को गाना किसने किसने गाया है और वो कैसा कैसा गाया है, तो आप गाने का नाम लेके भी सर्च कर सकते हो। तो इतना आसान हो गया है कि यूट्यूब को हज़ारों अलग अलग चीज़ें भरी पड़ी है, उसको उसमें से ढूंढ के निकालने के बजाय सिर्फ गाने के लिए अगर आपको ऑडिशंस
या फिर किसी का परफॉर्मेंस देखना है तो आपको बहुत आसानी से एक जगह पे मिल सकता है। सर आप म्यूजिक और टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से? म्यूजिक को देखो हैंड इन हैंड, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते जिंदा। सारा मामला डिजिटल हो गया है, डिजिटल इज टेक्नोलॉजी, म्यूजिक भी डिजिटल है, तो ये एक दूसरे के फ्रेंड्स है। मतलब म्यूजिक टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं पनप सकता और टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ म्यूजिक। जी एक्चुअली मेरी बीवी ने चुने कपड़े मेरे लिए। मैं एक जैकेट लेकर आया था, लाल जैकेट, मैंने पहन लिया मेरी मर्जी के अनुसार, पर मैं जब यहाँ घुस रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं पहनता, तो वाइट चेक कोट पहन। सर अभी बात की गई म्यूजिक में काफ़ी वर्ड यूज़ किया था गंदे गंदे, आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि इस तरह का कुछ गाना या कोई ऐसे वर्ड? कानून बनाना तो सही बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमें ये हक हो कि हम कुछ भी चाहे कह सकें और हम कुछ भी चाहें ना सुन सकें, ये भी बात है, हमें ये भी हक होना चाहिए। पर हकों के साथ में फ़र्ज़ भी होते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, विद एवरी राइट कम्स अ ड्यूटी। ड्यूटी इज़ नॉट टू हर्ट पीपल, ड्यूटी इज़ नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ कि अगर रोकना है तो अब्यूज़िव लैंग्वेजेस जो इंटरनेट पे या किसी के धर्म को गाली पड़ रही होती है, यहाँ से हिंदू गाली दे रहे मुसलमान को, मुसलमान गाली दे रहे हिंदू को, पागलपन चल रहा होता है, जिसकी माँ उसका बहन सब वो भी गंदी बात है। मैं सोचता हूँ उतना अगर रोक सके रोके, बाकी तो जिसको जो सुनना है सुने, जिसको जो देखना है देखें। किसी को अच्छी फिल्में देखनी, धार्मिक जय संतोषी मत वो देखें, जिसको पॉर्न देखना है वो पॉर्न देख ही रहा है। कंपटीशन के बारे में बात करें जी, जो ये ऐप में है, आपको क्या लगता है कंपटीशन अगर होता है तो इसमें ये ऐप कितना एक अच्छे सिंगर को हेल्प कर सकता है और एक बुरे सिंगर को हेल्प कर सकता है? बेसिकली ये मस्ती के लिए ऐप है। IKL जो इंडियन कैरोके लीग बना रहे हैं, म्यूज़िक ही जो ऐप है वो एक ऐसा ऐप है जिसमें लोगों को अपने फ़ोन पे कैरोके गाने का मौका मिलेगा, और प्रीमियम पे एंटेरिस नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है उससे जुड़ के गाने को सुर में लाया जा सकता है काफ़ी। तो ये एक फ़न ऐप है जिसको मेरे दोस्त संजय चितले इन्होंने इसे कंसीव किया है। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उनकी हर जो उनकी सोच है उसके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये म्यूज़िक की जो ऐप है IKL लीग जो बनने वाली है, ये लोगों को तक पहुँचेगी और अलग किस्म का एक म्यूज़िक में सबको मज़ा आता है गाने बजाने में, और अगर अपनी आवाज़ को अच्छी तरह सुन लेंगे तो और मज़ा आएगा। ओके, सुनो जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होगा प्रोसेस जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, इतने सारे वीडियो, इतने सारे ऑडियो आएंगे, सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ आवाज़ें होंगी, ढूंढना, क्योंकि ये थोड़ा करोड़ नंबर ऑफ करोड़ की बात कर रहे हैं हम, कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, हाँ ये की बात कर रहे हैं। संजय चितले बताएंगे इस बारे में, क्योंकि इस बारे में उनकी सोच है। मैंने कहा जैसे मैं तो उनका दोस्त हूँ, उनके भाई होने के नाते मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, पर इस बारे में ये पूरा जो प्रोसेस है ये संजय चितले जी को ज़्यादा पता है, तो आप उनसे सवाल पूछें। ओके सोनू जी, ब्रांड एम्बेसडर बने, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फेस हैं इसका, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। मैं दोस्त हूँ। तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, किसी ब्रांड का हिस्सा बन रहे हैं, और खास करके वो ब्रांड जो संगीत से जुड़े हैं? हाँ, इसमें हम लोग ये नहीं कह रहे, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम लोगों को म्यूज़िक सिखा नहीं रहे, लोगों को म्यूज़िक एंजॉय करने के लिए साधन देंगे। लोग पढ़ के कभी जैसे मुझे भी हर गाने लिरिक्स नहीं आते, ट्यून पता होती है, लिरिक्स नहीं आते। अब गाने हाथ में हो और आप फ़ोन पे ही देख के गा रहे हैं और फिर एंटेरिस को ऑन करते हैं तो फिर आपकी आवाज़ सुर में भी आ जाती है। तो ये एक मस्ती वाला ऐप है, और इसका मैं एम्बेसडर ना कहें, मैं सिर्फ इनके संजय चितले जी के साथ में इनके साथ में खड़ा हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम, द पीपल हु आर बिहाइंड दिस म्यूजिकी ऐप, और कोशिश ये रहेगी कि लोगों तक ये ऐप पहुँचे और लोगों से पूरा फायदा उठाए। सर पहले आप स्टेज से जाके सिंगर को ढूंढते थे, तराशते थे, लेकिन अभी ये ऐप के जरिए कितनी आसानी होगी? आप मुश्किल काम है, संजय चितले करेंगे, उनको ज़रा आता है।